ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ, ਅਣਿਆਲੇ ਅਣਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਪਿਰਮ ਕੀ, ਸੋ ਜਾਣੈ ਜਰੀਆ। ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ, ਅਣਿਆਲੇ ਅਣਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਪਿਰਮ ਕੀ, ਸੋ ਜਾਣੈ ਜਰੀਆ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀਐ, ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ, ਜਗਤ ਤਰ ਤਰੀਆ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀਐ, ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ, ਜਗਤ ਤਰ ਤਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਨਾਮ ਕੇ ਜਹਾਜ਼, ਹਲਕ ਪਲਕ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਸਹਾਇਕ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤ ਸਗੀ ਜਨੋ। ਆਪ ਜੀ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਪਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਪਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਔਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ, ਪੌੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਛੰਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦ ਭਾਵ ਦੂਜੇ ਛੰਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰਿਤ ਕਰੋ। ਬੜੀ ਹੀ ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਰਸਪਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਮਿਹਰਮਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਕਾਰੀ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਆਰੰਭ ਦੇ ਬਚਨ, ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ, ਅਣਿਆਲੇ ਅਣਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ। ਹਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰਪੂਰ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਇਸ ਤੀਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਧ ਦਿੱਤਾ। ਹਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਬਾਣੀ ਸਦਕਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਰੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤਿੱਖਾ ਤੀਰ ਹੋਵੇ। ਅਣਿਆਲੇ ਅਣੀਆਂ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਣੀ ਵਾਲਾ ਤਿੱਖਾ ਤੀਰ ਹੋਵੇ। ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੌਤ ਹੈ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ। ਜਿਸ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੇ ਪਰਸੋਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਨਮੈ ਸੋ ਜਨਮ ਮੂਆ।
जिस शरीर का जन्म होया उस शरीर की मौत निश्चित है। जदों इहदे साह चलने बंद होए, जदों दिल की धड़कन रुकी, जदों दिमाग की मौत हो गई, सैल टिशू की मौत हो गई, उदों असीं कह दिंदे हां कि मुर्दा है। शरीरक तौर पर जिहदा जन्म उहदी मौत निश्चित है। दूसरी मौत किहड़ी है? अक्सर 2 बार मनमुख मरदा है, 2 बार गुरमुख मरदा है, कोई विरला जिहड़ा 3 बार मरदा है। दूसरी मौत है साह चलते ने, दिल धड़कदा है, दिमाग काम कर रहा है, अखां देख रही ने, कन सुनते ने, जबान बोलती है, बहुत सियाना है, अमीर है, ज्ञानवान है, धन की कमी नहीं। सतगुरु पातशाह कहने लगे भी ये भी मरिया होया है, ये मुर्दा है। पूछा सतगुरु ये किवें मुर्दा है? साह दे चलते ने, शरीर इहदा चलदा है। कहने लगे नहीं, एक मौत ऐसी है जिहड़ी रब नाल टुटिया मिलदी है। अत सुंदर कुलीन चतुर, अंतां दा सोहना होवे, उच्ची जात कुलीन होवे, बड़ा चलाक भी होवे, मुखों ज्ञान दीयां गल्लां भी कर सकदा होवे, इहदे वर्गा अमीर धनवान कोई ना होवे, गुण सारे होण पर एक रब नाल विछोड़ा होवेगा। अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत, मृतक कही है नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। जिन्हों प्रेम बाणी का तीर नहीं ना लग्या फिर वो मुर्दा है। हाँ, प्रेम बाणी मन मारिया वाला तीर नहीं। हरि दे प्रीत तो बिना मृतक कही है नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। जे रब नाल प्यार नहीं, इन्नियां दातां लैके सोहना बन के, अमीर हो के, ज्ञानवान हो के, इन्नियां दातां लैके रब दे प्रति प्रेम नहीं, समझ लो वो मुर्दा है। खांदिया खांदिया मुंह कट्ठा, पहनदिया सब अंग त्रिग तिन्हां दा जीविया, जिन सच नाल लगू रंग, जिन्हां दा सच नाल रंग दा अर्थ प्रेम नहीं पैदा होया, उहदा जीवन फिर तिरकार है, वो जिंदा मरिया एक समान। ताई बाणी ने कह दिता कि जदों रब नाल कोई टुट जाए मौत है, तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरे सो मर जाए। एक है आ मौत। तीजी मौत किहड़ी है? तीजी मौत किसी बिरले नूं है। मनमुख शरीरक मौत भी मरदा है, आत्मक मौते भी मरदा है। गुरमुख शरीरक मौते भी मरदा है, और नाल गुरमुख की एक मौत होर भी है। और वो मौत है गुरु के शब्द विच आपे नूं मार देना। शब्द मरो फिर जीवो सद ही, वो जीवन सद है। शब्द मरो फिर जीवो सद ही, ता फिर मरण ना होई, फिर जीवन मुक्त हो जाता है, मौत नहीं दोबारा उन्हें सताती। तीजी मौत है गुरु शब्द विच आपे नूं मारना। मनमुख भी 2 बार मरदा है, गुरमुख भी 2 बार मरदा है। शरीरक तौर पर मनमुख की भी मौत है, गुरमुख की भी है। हाँ, मनमुख आत्मक मौते मर जाता है, गुरमुख शब्द विच आपा समर्पित कर दिंदा है। कोई विरला सज्जण वर्गा जिहड़ा शरीरक मौते ते मरदा ही है, कभी विकारां विच भी मरिया हुंदा सी, आत्मक मौते भी, अज शब्द विच भी मर गया। अज गुरु नानक दे शब्द विच उहने आपा लीन कर दिता। 3 मौतां विरले दियां ने, नहीं तो 2 मौतां हर मनुख मात्र दीयां चलदियां ने। साडियां बहुतियां मौतां शरीरक तौर ते ने जां आत्मक मौते असीं मर जांदे आ। कोई बिरला भागां वाला जिहड़ा शब्द विच मरदा है। जदों अज शब्द की मौत की सतगुरां गल कीती, कह लगे गुरु जिहड़ा है ना, वो एवें नहीं मारदा, वो तीर मारदा है, इक्को तीर नाल कई निशाने ला दिंदा है। पुछे भी मौत ते उहनूं कहंदे ने ना भी जदों अखां देख ना सकण, कन सुन ना सकण, जबान बोल ना सके, दिल धड़कना बंद हो जाए, उहनूं आखदे ने। सतगुरु कह लगे हाँ, गुरु भी इस तरह की मौत दिंदा है। गुरु शब्द का तिखा तीर मारदा है। हर प्रेम बाणी मन मारिया, अणियाले अणिया राम राजे। हरि ने प्रेम रूपी बाणी का तिखा अणी वाला तीर मारिया। अणी वाला तीर किहड़ा? 2 तरह के तीर हुंदे ने। एक हुंदे ने आम सीधे तीर, किसी नूं लग जाण आर पार निकल जाते हैं, ते जिहड़ा तीर आर पार निकल जाए जख्म ठीक हो जाता है, आराम मिल जाता है।
एक तीर ऐसे ने जिहड़े खुंगी वाले ने, जिहड़े मुड़े हुए ने, ਜਾਂ कुछ तीरां दी नोक दे पिछले पासे दो खुंगियां लगियां हुंदियां ने ताकि तीर जिथे वजे उत्थे ही अड़ जाए, आर पार ना होवे। ते ओह वाला तीर जिहड़ा ना बड़ा दुखदाई हुंदा है, जिहड़ा एक बार तीर अंदर अड़ जाए, आर पार ना निकले। अणी वाला तीर अंदर खुब जाए फिर निकलदा नहीं है। अणी वाला तीर मैंने जिहदे अंदर खुंगी है, अणी लगी है, जदों एक बार वह तीर वजदा है वह फिर कभी निकलदा नहीं। हुण दुनियावी गल्लां बातां आम तीर ने, असीं एक कंन चों सुणियां दूसरे कंन चों निकल गईयां, असीं दुनियावी गल्लां भुल भी जाने आ। दुनियावी बातां आम तीर ने। गुरु का शब्द अणी वाला तीर है। गुरु का शब्द एक बार मन च खुब जाए ना, सारी जिंदगी इस मन चों नहीं निकलता। एक बार यह शब्द मन नूं विन दे फिर सारी जिंदगी मन का खैड़ा नहीं छड्डदा। शब्द है निशाना लगाना होवे ते तीन चीज़ां चाहिदियां ने। एक ते तीर चाहिए ते दूसरा सामने निशाना भी पिया होवे जिहदे ते चलाना तीर, ते तीसरा तीर अंदाज भी चाहिए जिहड़ा तीर ऐ निशाने ते ला सके। हुण गुर शब्द तो वधिया तिखे तीर कोई नहीं। गुरु शब्द अणी वाले तिखे तीर ने ते चलाने वाला भी सतगुरु तीर अंदाज है। गुरु का निशाना उकदा नहीं है। फिर सवाल पैदा होता भी साडे मन च शब्द का तीर क्यों नहीं खुबदा। तीजी गल वो सिखा जे तू मन नूं निशाना लगाउणा है, मन ते तेनूं सामने भेंट करना ही पैना है ना। जे मन सामने ही नहीं तू रखिया, गुरु निशाना किहदे ते लगावे। शब्द तिखे तीर ने, गुरु वर्गा तीर अंदाज कोई नहीं। गुरु का निशाना कभी नहीं खुंजदा। पर शरीर ते तेरा इत्थे आ बैठ जाता है, मन कभी भी हाजिर नहीं किया। मन संसार विच होवे, मन परिवार च होवे, कारोबार च होवे, मन बाहर होवे, गुरु निशाना किदे ते लगाए। कभी किसी दिन मन गुरु अगे रख के देखी, जिस दिन शब्द का तीर का निशाना मन नूं जा लगेगा ना, फिर सारी जिंदगी शब्द मन चों नहीं निकलेगा। सज्जन का मन सामने सी, गुरु ने शब्द का तीर मारिया। मलिक भागो का मन सामने है, गुरु ने शब्द का तिखा तीर मारिया। राजे शिवनाभ का मन सामने है, गुरु ने शब्द का तिखा तीर मारिया। वली कंधारी का मन सामने है, गुरु ने ऐसा तीर मारिया सारी जिंदगी नहीं अंदर गया। शब्द तिखे तीर ने, जदों मन नूं निशाना लग जाए ते गुरु इस मन नूं विन दिंदा है। हर प्रेम बाणी मन मारिया। गुरु ने शब्द का तीर चलाया, की होया? गुर सुंदर मोहन पाए करे, हर प्रेम बाणी मन मारिया। मेरा हृदय सुध बुध विसर गई, मन आसा चिंत विसारे। मन दियां सोचां, मन के विचार ही खत्म हो गए, विकारी मन की मौत ही हो गई। गुरु ने तिखा तीर मारिया ते की होया? अचर चरै तां सिद्ध हुई, सिद्धि ते बुद्ध पाई। प्रेम के सर लागे तन पीतर, सर मैंने तिखे तीर। प्रेम के सर लागे तन पीतर, ता भ्रम काटिया जाई। गुरु ने सारे भुलेखे कट दिते। शब्द मन में खुब गया। उस गुरु शब्द ने मन चो सारे शंके खत्म कर दिते, भरम नहीं कोई रह गया। नानक लगी तुर मरै, जीवड़ नाही ताण। चोटे सेती जो मरै, लगी सा प्रवाण। जिसनों लाए तिस लगे, लगी ता प्रवाण। पिरम पैकाम ना निकले, लाया तिन सुजान। जदों गुरु शब्द का तीर मारदा है, यह बख नहीं हुंदा मन चों। बल्कि भगत कबीर जी ने एक श्लोक किया, दुनियावी तीरां नूं सहार लेना आसान है। दुनियावी तौर पर सानू की बरछी नेजा मारे, साडा जख्म भर जांदा, असीं सहार लैने आ। भगत कबीर कहन लगे, गुरु के शब्द की जिहड़ा चोट नूं सहार लवे, जिहड़ा गुरु के शब्द नूं झल लवे, वो मेरा गुरु, मैं उहदा सेवक बनन नूं तैयार हाँ। शब्द नूं झलना बड़ा औखा है। सानू कोई तलवार नाल मारे, असीं जर जन्ने आ, जख्म मिल जाते ने। सानू कोई कौड़ा शब्द बोल जाए ना, भावें 20 साल बाद साडे सामने आ जाए, असीं भुलदे नहीं। इहने 20 साल पहला मैनूं आह गल कही सी। शब्द वो तिखा तीर है। ते गुरु का शब्द अणी वाला तीर। गुरु का शब्द जदों वज जाता है,
फिर एक दिन निकलदा नहीं, इनू सहारना औखा है। कबीर चोट सुहेली सेल की, सेल आखदे ने बरछी नू, बरछी की चोट सहारनी सुहेली है, सौखी है। चोट सुहेली सेल की लागत लेह उसास, चोट सहारे शब्द की तास गुरु मैं दास। कोई शब्द की चोट सहार जाए वो मेरा गुरु, मैं तो दास बनने को तैयार आ। शब्द इन्ना तिखा है, शब्द की करता है। भगत कबीर जी ने दो सलोक कहे, कहने लगे गुरु तीर इको चलांदा है, निशाने कई लग जाते हैं। असी किसी ते तीर चलाइए ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪੈਰ ਤੇ, ਪੇਟ ਤੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਖੜੋਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿੰਨਿਆ, ਕਲੇਜਾ ਨਾਲ ਵਿੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਖੜਾ ਖੜੋਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। गुरु ने तीर इको ही चलाया शब्द का, अखां अन्नियां हो गई। गुरु ने शब्द का तीर चलाया, कन बोले हो गए। गुरु ने शब्द का इको तीर चलाया, जबान गूंगी हो गई। गुरु ने इको तीर चलाया, पैर लंगड़े हो गए, हथों हीना हो गया। इको तीर नाल कहने लगे कबीर सतगुरु सूर में बाह्या बान जो एक, लागत ही भोए गिर परिया, परा करे जे छेक। गुरु ने शब्द का तीर मारिया, दिल नू विन गया, कलेजे नू चोट कर गया, खड़ा खड़ोता जमीन ते डिग पिया। कबीर गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान, इको तीर ने इन्ना कुछ कर दिता, जबान तो गूंगा कर दिता, कन्नों बोला कर दिता। गुरु ने कृपा की, तीर मारिया, पैरा तो लंगड़ा कर दिता। गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान, पावों ते पिंगुल पया, मारिया सतगुरु बाण। गुरु ने तीर मारिया, पैरों तो लंगड़ा कर दिता। वो किस तरह? गुरु का तीर जो मन नूं विंधदा है ना, कल तक जिहड़ा मन हंकारी सी, हुण बांस भी हंकारी है। कबीर बांस बढ़ाई बूटिया, इउं मत डुबो कोई, देखी तू बांस वांगू ना डुब जाई। बांस हंकारी है, अंदरों थोथा है, खोखला है, पर जो बांस नूं कोई विन दिंदा है ना, बांस सुर विच आ जांदा है, उदों बांसुरी बन के दुनिया नूं संगीत दिंदा है। मन हंकारी सी, गुरु ने शब्द नाल मन नूं विन्निया, इस मन विचों भी संगीत पैदा होना शुरू होया, रब्बी नाद प्रगट हो गया। गुरु ने तीर मारिया, खड़ा खड़ोता जमीन ते डिग पिया। ते जमीन ते डिगण दा अर्थ की है? कल तक हंकार विच आकड़िया खड़ा सी, हुण निमरता च झुक गया, हुण मिट्टी हो गया, सारिਆਂ ਦੀ धूड़ बन गया। गुरु ने तीर मार के कह दिता, जे इत्थे आउणे ते पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, हो सबना की रेणुका, तो आओ हमारे पास। सारिਆਂ ਦੀ धूड़ बन के आई जे इत्थे आउणे। गुरु ने शब्द का तीर मारिया, खड़े खड़ोते हंकारी नूं मिट्टी च रोड़ दिता, निमरता विच ले आंदा। हुणे सारिਆਂ ਦੀ चरण धूड़ी बनिया फिरदा है। कबीर गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान, पावों ते पिंगुल भया, मारिया सतगुरु बाण। गुरु ने शब्द का तीर चलाया, जबान नूं गूंगा कर दिता। अगे ये जबान निंदिया करती सी, झूठ बोलती सी, बिकारी गीत गाती सी। गुरु ने शब्द का तीर मार के कह दिता, अज तो बाद जबान तो झूठ ना बोली। गुरु ने कह दिता, अज तो बाद इस रसना तो निंदिया चुगली ना करी, बोलिए सच धर्म, झूठ ना बोलिए। जो गुर दसे वाट, मुरीदा जोलिए। गुरु ने कह दिता, इस जीव नाल झूठ ना बोलिया करी। गुरु ने कह दिता, अज तो बाद तेरी जबान ये निंदिया चुगली ना करे, झूठ ना बोले। गुरु ने तीर मारिया, कन्ना नूं बोला कर दिता, अज तो बाद तेरे कन्ना दे विच विकारी गीत, निंदिया चुगली, झूठ ना जावे। मेरे मोहन श्रवणी यह ना सुनाए, साकत गीत नाद धुन गावत, बोलत बोल अजाई। गुरु ने तीर मारिया, अखां नूं अन्ना कर दिता। अज तो बाद पर तेरा रूप ना दिखे नित्र, तेरे ये नित्र, तेरी अखां पराया धन पराया रूप ना दिखण। अज तो बाद इन्ना याद रखी, अखी सूतक
ਕੰਨੀ ਸੂਤਕ ਕੰਨ ਪੈ ਲਾਇਤ ਵਾਰੀ ਖਾਏ, ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵਿਖਣਾ ਪਰ ਤੇਰੇ ਪਰ ਧਨ ਰੂਪ। ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸੂਤਕ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ। ਕੰਨੀ ਸੂਤਕ ਕੰਨ ਪੈ ਲਾਇਤ ਵਾਰੀ ਖਾਏ, ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਤਕ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਭਰ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਰੂਪ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਗੂੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਵਿਕਾਰੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੰਗੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਹੀਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੈ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗਾ ਹੁਆ ਬਾਬਰਾ, ਬਹਿਰਾ ਹੁਆ ਕਾਨ, ਪਾਵੋਂ ਤੇ ਪਿੰਗਲ ਭਇਆ, ਮਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਿੰਨੇ ਭੰਮਣਾ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰੱਬ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਕੰਨ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਝੂਠ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਕੰਨ ਬੋਲੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਹੁਣ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ 4 ਕਦਮ ਤੁਰਦਾ ਸੀ, ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੰਗੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਗੈਰ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਰੱਬ ਤੱਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਖੀਂ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ, ਵਿਣ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਨਾ। ਹੁਣ ਬਗੈਰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬਗੈਰ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਖੀਂ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ, ਵਿਣ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਨਾ। ਹੁਣ ਵਿਕਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੈ ਕੇ ਚਰਨ ਕਰ ਭਾਵ ਕੇ ਲੋਇਣ ਸੁਰਤ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਲੋਇਣ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਲੋਇਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਰਤੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਰੱਬ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਖੀਂ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ, ਵਿਣ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਨਾ। ਹੁਣ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਵਿਕਾਰੀ ਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਪੈਰੀ ਬਾਝੋਂ ਚੱਲਣਾ, ਵਿਣ ਹੱਥਾਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਗਈ। ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਭਾ ਬਾਝੋਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਉਂ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ। ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿਕਾਰੀ ਜੀਵ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਜੀਵ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਬੋਲ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਆਖਦਾ ਹੁਣ ਆਪੋਂ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮਾਓ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਕੌਣਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੀ ਵਿਕਾਰੀ ਜੀਭ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਮਿਲਾ ਲੋ। ਜੀਭੇ ਬਾਝੋਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਉਂ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਜੀਵਤ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੀਭੇ ਬਾਝੋਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਉਂ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤਉ ਖਸਮੇ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਰੱਬ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੰਨ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਬਾਨ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਸੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤੀ ਨਿਤ ਚੱਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਵਤਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਪਾਰ ਵਸਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਿਟੇ ਪਾਪ ਜਪੀਆ ਹਰ ਬਿੰਦ। ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਰ ਹਰ ਕਰਮ ਸਰਵਣ ਹਰ ਕਥਾ, ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਨਾਨਕ ਉਜਲ ਮਥਾ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ, ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ, ਅਣਿਆਲੇ ਅਣੀਆਂ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਪਿਰਮ ਕੀ ਸੋ ਜਾਣੈ ਚਰਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਤੀਰ ਲੱਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰ ਦੀ ਚੋਟ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
जिन्हों यह तीर वजिया होया है, जीवन मुक्त सो आखिए मर जीवे मरिया, वो जिउंदे जी मुक्त हो गया जिहड़ा गुरु चरणों में मर के जिउंदा होया। क्योंकि विकारी जीवन की मौत हो गई, हुण धर्म की जिंदगी शुरू हो गई। विकारी जीवन खत्म हो गया, गुरु ने एक नवा जीवन दे दिता, जिस जीवन में उस्तत निंदिया नहीं, मान अपमान नहीं, सुख दुख नहीं, जिस जिंदगी दे विच विकार नहीं है। वो जिंदगी केड़ी है? जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी मने, वो जिंदगी है। दुख है, दुख मनदा नहीं है। दुख मैं दा भाव है दुख दे विच दुख नहीं मानना। इसदा अर्थ नहीं भी धर्मी की जिंदगी हुण दुख नहीं होता। दुख ओदी जिंदगी विच भी हुंदा है, सुख ओदी जिंदगी विच भी हुंदा है, पर धर्मी मनुख दुनियावी तौर पर मौत हो गई, धर्म की दुनिया च जीवन लग पिया, इस करके दुनियावी सुख दुख का एहसास नहीं है। किते सानू ठंडे पानी नाल नहाना पै जाए ना, एक मग पानी का शरीर ते पाइए, पानी बड़ा ठंडा लगता है। कामरेड तो कामरेड बंदा भी जबान तो रब का नाम ले जाता है। दूसरा पानी का मग भर पाया, थोड़ा पानी घट ठंडा लगे। तीजा पानी का भांडा पर शरीर ते पाया, हुण पानी नहीं ठंडा लग्या, हुण मग भर भर पानी पाई जाता है। हुण पानी गर्म हो गया, पानी उन्ना ही ठंडा है। शरीर ने अपनी सहनशीलता बढ़ा ली, शरीर ने अपनी समर्था बढ़ा ली सहन की। इसी तरह जिन्ना चिर आत्मक जीवन की सहन शक्ति नहीं सी वधी, पेन भी गवाचदा सी ते घर उथल पुथल हो जाती सी, पेन नहीं लभदा पिया। नोट गवाच जाना, सुत्तियां नूं उठा उठा के लभना, किते तेरे थल्ले ना नोट आ गया होवे, घरों बाहर जाके लभना, किते रस्ते च ना सुट आया होवां। हाँ, जिद्दण समर्था बढ़ गई, अज धर्म कौम की खातर घर भी कुर्बान करना पवे, धीआं पुत्र भी वारने पैण, राज भाग भी छड्डना पवे, हुण कोई परवाह नहीं है। हुण तन भी क्यों ना कष्ट सहारने पैण, हुण कोई परवाह नहीं। जिन्ना चिर मन कमजोर सी, उन्ना चिर छोटी जी चीज हथों जानी, दुखी हो जाना, उदास हो जाना, निराश हो जाना। जिद्दण धर्म की जिंदगी दे विच जीवन मजबूत होया, हुण आखदा सारा कुछ ही नाशवान, जे तन भी जांदा ते जावे, कपड़ रूप सुहावना, छड़ दुनिया अंदर जामना, परवाह नहीं बनदा। दुख है, समर्था वध गई। जिन्हों सतगुरु ने कह दिता, जे सुख दे तां तुझे आराधी, दुख भी तुझे धियाई, जे भुख दे तां इतही राजा। दुख विच ये नहीं कि दुख खत्म हो गया, दुख विच सुख मनाई है, दुख पर मैं सुख करके मनदा। मीर मन्नो की कैद में सिख बीबियां बच्चियां के टुकड़े करवा रही ने, बड़ा बड़ा दुख है, पर अरदास करदियां ने, तेरे भाने च साडा 4 पैर दिन बड़े सुख का बतीत होया। ताकत वध गई, समर्था वध गई। तत्ती तवी ते सतगुरु बैठे ने, पर समर्था वध गई। कह दिता, तेरा किया मीठा लग गया। कोई बंद कटा रहा है, कोई आरे नाल 2 टुकड़े करा रहा है, समर्था वध गई। जे भुख दे तां इतही राजा, दुख विच सुख मनाई, भावें मैं दुख विच भी होवां, मैं सुखी हाँ, इन्ना जीवन मुक्त हो गया मैं। जो नर दुख मैं दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, जिहदी जिंदगी विच भय नहीं, स्नेह नहीं, सुख भी जिन्हों सता नहीं सकता। असीं ते सुख विच भी डोल जाने हां, सानूं सुख भी सताउंदा है। पुत्र का ब्याह रखिया होवे ना, ते कहंदे पाउंदे गुरसिख परिवार नशे विच धुक के सड़कां ते भंगड़े पादे जाणगे। 3-3 4-4 घंटे भंगड़े पांदे नहीं टाइम लभदा उन्हां नूं, भी टाइम इन्ना हो गया है। हाँ, आनंद काज का टाइम होवे, फिर ग्रंथी सिंह नूं आखदे ने जी 15 मिनट तो वध ना लाओ जी। क्यों, बाद च की करना है? क्योंकि बाद च बाहर ढोली फिर तैयार खड़ा है 4 घंटे भंगड़े पाने वास्ते। जिहड़ा असली मकसद सी आनंद कारज, उहनूं असीं 15 मिनट भी देण नूं तैयार नहीं होंदे। नशे विच धुत हो के भंगड़े पांदे तुरे जाणगे, ते अगे आउंदा भाई टक्करदा ते भाई नूं आखदे ने, हुण शब्द पढ़, हम घर साजने आए। भी पुछो, नशे विच धुत हो के भंगड़े पांदे आए भूत ने कि साजन ने? साजन इस तरह के हुंदे ने, साजन ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣ। ਤੇ ਸਾਜਨ ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। इस शब्द का अर्थ है, हम घर साजन आए, मेरे हिरदे घर विच रब सज्जन आए।
साचे मेल मिलाए, सच्चे गुरु ने मैनू रब सज्जण नाल मिला दिता। मेरा सज्जण इक्को ही है, सज्जण सच्चा पातशाह, सिर शाहां दे शाह, जिस पास बैठिया सोही है सबना दा विसा। लोग सुख दे विच भी बौरे हो जाते ने, दुख च दुखी हो जाते ने, दुख आए लोग धाहा मारते ने, सुख आए बौरे हो जाते ने। हाँ, जीवन मुक्त वो है जिहड़ा दुख च भी अडोल रहिंदा, सुख विच भी अडोल रहिंदा है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भै नहीं जाके, कंचन माटी मन है, जिहड़ा सोने नूं मिट्टी समझदा है। हुण इहदा अर्थ की होया कि सिख सोने नूं मिट्टी समझदा है और घरों चिमटियां नाल फड़ फड़ के सोना बाहर सुट्टदा है भी सोना नहीं रखना, मिट्टी ये नहीं। इहदा अर्थ ये नहीं है। कंचन माटी मानने का भाव दूजे दे सोने नूं मिट्टी जानदा है, मेरा हक नहीं है, ये किसी होर दा हक हो सकता है, मेरे लिए मिट्टी समान है, ये मेरी चीज नहीं। दूजे दे धन नूं, दूजे दे हक नूं, दूजे दी कमाई नूं, दूजे दे सोने नूं मिट्टी जानदा है, ये मेरा नहीं है, मेरे लिए इहदे मेरे मन विच इहदे प्रति कोई कीमत नहीं, मेरा नहीं है, किसी होर दा हक हो सकता है, ओहदा सोना है। कंचन माटी मानने का अर्थ है दूजे दे धन नूं मिट्टी समान जानदा है, मेरा नहीं है, किसी गरीब दा हक नहीं मारदा, किसी का धन नहीं खोंदा। दूजे दे धन प्रति इहदे मन विच मिट्टी समान मुल है, क्योंकि मेरा नहीं, मेरे लिए मिट्टी है। हाँ, किसी लिए सोना है, किसी लिए हक है, किसी लिए सारी जिंदगी का खून पसीने की कमाई है किसी की, पर मेरे मन में मिट्टी समान, क्योंकि मेरा हक नहीं है। कंचन माटी मन है, नहीं निंदिया नहीं उस्तत जाके, लोभ मोह अभिमाना, उहदे मन च निंदिया नहीं, उहदे मन दे विच उस्तत नहीं। कोई निंदिया कर जाए तां भी परवाह नहीं, कोई सिफत गा जाए तां भी परवाह नहीं, न निंदिया न उस्तत जाके। लोभ मोह अभिमाना, लालच अहंकार अभिमान है ही नहीं। मोह तो बच गया, हरख सोग ते रह न्यारो, खुशी गम तो उच्चा उठ गया, ना ही मान अपमाना, उहदी जिंदगी विच मान भी नहीं अपमान भी नहीं, दोनों तो उच्चा उठ गया, मान अपमान तो उच्चा हो गया। ये बिरले दे कोल इस समर्थ है। कभी गुरु नानक साहब ने कहा सी, मरदानिया मान अपमान तो उच्चा रही। मरदाना आखदा, सतगुरु सचमुच लोग नीच कहते ने, मरासी डूम कहते ने, मैं परवाह नहीं मनदा, पर अज जो लोगों ने तुहानू कहा मैं सहार नहीं सकिया, अज लोकां कह दिता कुराइए दा डूम तुरिया जाता है, तुहानू अज कुराइया कह दिता मैं बर्दाश्त नहीं कर सकिया। सतगुरु हस पे, कहने लगे, मरदानिया मान अपमान तो उच्चा उठ जा। लोग माड़ा कहण, तेनू माड़ा कहण, मैनू माड़ा कहण, झगड़न ना खड़ा हो जाई। जिस सच का प्रचार लैके तुरे हो काम अधूरा रह जाएगा, असीं झगड़न च जिंदगी व्यर्थ गवा जावांगे। कहने लगा सत बचन। सतगुरु कहने लगे, एक गल होर भी याद रखी, लोग सिफत करन मान देण, गल फुल्लां दे हार पाउण, फुल्लां दी वरखा करन, उन्हां दे पिछे ना तुर पई, क्योंकि जिस सच दे प्रचार नहीं तुरे हो काम फिर विचे रह जाएगा। असीं लोकां दे पिछे तुरदियां जिंदगी बतीत कर जावांगे। मरदानिया अपनी ईमान च पक्का रही, तू अपना ईमान ना बदली, दुनिया की जबान बदलदियां देर नहीं लग्या कर दे। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮਾੜਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕੱਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਣ ਅਪਮਾਨ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉੱਚਾ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹਿ ਉਸਤਤ ਜਾਕੈ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨਾ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਆਰੋ, ਨਹਿ ਮਾਣ ਅਪਮਾਨਾ, ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ, ਜਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਰਾਸਾ। ਹੁਣ ਨਿਰਾਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ नहीं, आसावां मनसावां तो उच्चा उठ के निरास हो जाना, आशावां मुक्की जानिया, संतोख आ जाना मन विच, क्योंकि आशावां नाल कदी कोई नहीं रजिया, जदों कोई रजदा संतोख नाल ही रजदा है, बिना संतोख नहीं को रजे, संतोख तो बिना रज नहीं। आशावां तो उच्चा उठ जाना, निरास हो जाना, आसा मनसा सगल त्यागै, जग ते रह निरासा, काम क्रोध जिह परसै नाहिन, तै घट ब्रह्म निवासा। उहदे हिरदे च रब दा वास है, जिन्हों काम क्रोध आदि छो भी ना सकन। ते ये अवस्था मिलदी किन्हां नूं है, जिहड़े मिट जांदे ने। गुर किरपा जिह नर को कीनी, ते यह जुगत पछानी, नानक लीन भयो को बिदस्यो, जो पानी सब पानी।
इस अवस्था ते ओ है जीवन मुक्त सो आखिए मर जीवै मरिया। कह लगे वो जीवन मुक्त जिउंदे जी मुक्त है जिहड़ा मर के जिउंदा है। हुण इत्थे मुक्ति की गल आई, एक मैं बेनती करा, इहो जिहे शब्द आसा की वार विच बहुत आने ने, धर्मराज, चित्रगुप्त, मुक्ति, स्वर्ग, नरक, बैकुंठ, दोजक, इहो जिहे बड़े अखर होने ने। ते गुरबाणी की विचारधारा नूं समझना होवे सब तो पहला सानू गुरबाणी ते भरोसा करना पएगा, गुरबाणी ते विश्वास करना पएगा। जिन्हां बाणी ते विश्वास कीता उन्हां दी जिंदगी दे बेड़े पार होए ने, ते जिन्हां ने गुरबाणी ते विश्वास नहीं कीता उन्हां नूं खेड़े खूड़े किसे नूं नहीं मिले। जाके मन साचा विश्वास, जिनके मन साचा विश्वास, पेख फेख स्वामी की शोभा, आनंद सदा उलास। जिन्हां ने विश्वास किया उन्हां नूं आनंद खेड़े मिले ने, जिन्हां गुरबाणी ते विश्वास नहीं किया उन्हां नूं कोई खेड़े खूड़े नहीं मिले। जिन्हां भरोसा किया, जिन्हां गुरबाणी ते इन्ना विश्वास किया कि सतगुरु तेरी बाणी ते विश्वास करके मैनूं जम्मण मरण जाना पिया, नरक सड़ना पिया, प्रवान है, हाँ तेरे वाल पिठ दे के जे मैं जन्म मरण तो बच जाना मैं तां भी बचन नूं तैयार नहीं। तेरे वाल करवट दे के जे मैनूं नरक च भी सड़ना पिया तो मैं सड़न नूं तैयार नहीं। तेरे वाल पिठ दे के स्वर्ग जाना पिया, स्वर्ग भी जाण नूं तैयार नहीं है। हाँ तेरे वाल मुख करके भावें नरक च सड़ना पवे, जन्मा मरना जाना पवे, मैनूं प्रवान है। क्यों? क्योंकि मैं तेरे ते भरोसा करदा, होर किसे ते नहीं करदा। ते जिन्हां गुरबाणी ते भरोसा कीता उन्हां दे तन दे टुकड़े हो गए। आरे नाल उन्हां दो टुकड़े करा ले, गुरु तो भरोसा नहीं छड्डिया। बंद बंद कटा ले, गुरु तो भरोसा नहीं छड्डिया। ते गुरबाणी नूं समझना होवे ना, 8 चीज़ां छड्डणीआं पैंदियां ने, तां फिर 9वीं गुरबाणी की गल आउंदी है। पहला 8 चीज़ां छड्डणीआं पैंदियां ने। वो किहड़ियां? हुण एक छोटी जी उदाहरण देवां। असीं गुरबाणी की व्याख्या बहुत गलत तरीके नाल करते रहे। मान लो मेरा कोई मित्र, मेरा भरा इंडिया तो कैनेडा आ रहे है, मैं वो हाथ कुछ किताबां भेजिया कि कैनेडा जो सरी जाएगा तेनों मेरा एक मित्र मिलेगा, उसका नाम होएगा हरजीत सिंह, उन्होंने जाके ये किताबां फड़ावी, ये उसका मोबाइल नंबर है। मैनू फोन नंबर भी दे दिता, नाल उन्होंने मैं पछाण दस दी भी उसकी जिहड़ी पछाण है ना, वो क्लीन शेवन होएगा, काला जिहा रंग होएगा, लम्मा सारा होएगा, सिर ते टोपी लगाई होएगी, कंन च उन्हें मुर्गियां पाइयां होणगियां, ते उन्होंने जाके मिल ले। वो आया, उन्हें फोन किया, मेरा मित्र हरजीत सिंह आखदा मैं गुरुद्वारे के बाहर खड़ा, वो आखदा नजर नहीं आ रहे मैनूं। मेरा मित्र आखदा भी मैं इस रंग के कपड़े पाए ने, देखिया सचमुच वही हरजीत सिंह है। हुण की होएगा, मेरा भरा मैनूं फोन करके पूछेगा कि हरजीत सिंह ते मिले है पर निशानियां गलत ने, फोन भी बिल्कुल ठीक लगे है। तुसीं ते कहंदे सी भी क्लीन शेवन होएगा, सिर ते टोपी होएगी, कंन च मुर्गियां होणगियां, लम्मा जिहा काला जिहा होएगा। इत्थे मैं आके देखिया कि सोहनी दस्तार सजाई हुई है, दाड़ा रखिया होया है, सिर ते केस ने, दस्तार है, दाड़ा है, अमृतधारी गुरसिख है, मदरा जिहा कद है, रंग बड़ा सोहना है। तो मैं इक्को दम मत्थे ते हाथ मार के कहांगा वो थोड़ा भुलेखा लग गया है, मेरा हरजीत सिंह वो भी मित्र है, पर पछाण मैं लुधियाने वाले मित्र की दस बैठा। जिहड़ा मेरा लुधियाने मित्र है उसका भी नाम हरजीत सिंह है, पर वो थोड़ा लम्मा है, काला है, क्लीन शेवन है, सिर ते टोपी है, कन्न मुर्गियां ने। जिहड़ा कैनेडा वाला मेरा मित्र है वो अमृतधारी सरदार है, प्रकाशमान दाड़ा, सोहनी दस्तार। गल की मैं ना लिया कैनेडा वाले हरजीत सिंह दा, पर पछाण मैं लुधियाने वाले की दस दी। मेरा वीर, मेरा भरा कन्फ्यूज हो गया। असी इस तरह गुरबाणी की व्याख्या च कन्फ्यूज होए आ। असी की कीता, असी गुरु ग्रंथ साहिब विचों शब्द चुक्या बैकुंठ, पर जो बैकुंठ के अर्थ करन लगे असी वेद चुक ले। बैकुंठ के अर्थ करन लगे असी 6 शास्त्रां नूं चुक लिया, उहदे विचों अर्थ कर दिते। शब्द बैकुंठ चुकिया, असी वेदां ते पुराणां दे विचों, सिमरतियां दे विचों अर्थ करन लग पे। असी शब्द चुकिया धर्मराज, अर्थ असी वेदां दे कर दिते। असी शब्द चुकिया गुरबाणी विचों चित्रगुप्त,
व्याख्या असी शास्त्रां दी करन लग पए। असी गुरबाणी विचों शब्द चुकिया जन्म मरण, गुरबाणी विचों शब्द चुकिया असी मुक्ति, ते व्याख्या असी करन लग पए शास्त्रां दी वेदां दी। असी वैकुंठ चुकिया शब्द गुरबाणी चों, व्याख्या कीती वैकुंठ दी। राजा इंद्र दा दरबार सजिया होया है, हुरां पसरावां नाचकारियां ने, गण गंधर्व साज वजा रहे ने, देवते सुरापान कर बैठे ने। असी व्याख्या उन्हां दी कर दित्ती। जिहड़ा भी शब्द असी गुरबाणी चों चुकिया, व्याख्या असी बाहरलियां ग्रंथां चों करन लग पे। गल की हुई, असी कन्फ्यूज हो गए, असी भुलेखा खा गए व्याख्या करने विच। जे मैं गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विचों शब्द चुकिया है, चाहिदा सी अर्थ भी इहदे विचों लभदा। मैं इहदे विचों अर्थ लभण दी बजाए मैं बाहरले ग्रंथां दे अर्थ करके सुना दित्ते। नाम ओही सी हरजीत सिंह, पर व्याख्या करनी सी कैनेडा वाले मित्र दी, घर बैठा मैनूं बिहाने वाले दी। मेरा वीर कन्फ्यूज हो गया। असी शब्द गुरबाणी विचों लए, व्याख्या असी बाहर दे ग्रंथां विचों कर लई। इस करके जदों गुरु ग्रंथ साहिब की व्याख्या करनी होवे ना, ते 8 गल्लां छड्डणियां पैणगीਆਂ। 9वीं गल गुरु दी शुरू होएगी। फिर 9वीं गल गुरु ग्रंथ साहिब दी शुरू होएगी। वो 8 चीज़ां किहड़ियां ने? पहलियां ते 6 चीज़ां ने। खट दर्शन वरतै वरतारा, गुरु का दर्शन अगम अपारा। खट दर्शन मैंने 6 शास्त्र जिन्हां दा दुनिया विच बोलबाला है, हिंदुस्तान विच प्रचलित ने। वो शब्द वैकुंठ, धर्मराज, मुक्ति, स्वर्ग, नरक आदिक वो शब्द प्रचलित ने उन्हां लोकां दे विच। उन्हां दा वरतारा है खट दर्शन वरतै वरतारा। 6 शास्त्रां दा व्यापक वरतारा है हिंदुस्तान विच। पर गुरु का दर्शन अगम अपारा। गुरु का सिद्धांत इन्हां 6 तो उच्चा है। एक तो पहला 6 शास्त्रां दी विचार छड्डणी पएगी, उन्होंने एक पासे करना पएगा जे गुरु ग्रंथ साहिब की विचारधारा समझनी है। 2 चीज़ां होर की छड्डणियां पैणगीਆਂ। 2 चीज़ां होर ये ने, एक तो 6 दर्शन 6 शास्त्र हो गए, उन्हां की व्याख्या करनी बंद करनी पएगी जे गुरबाणी की व्याख्या करनी है। तो दूजी गल, हमरा झगड़ा रहा ना को, पंडित मुल्ला छाड़े दो। पंडित मुल्ला जो लिख दिया, छाड़ चले हम किछू न लिया। जो पंडित ते मुल्ला ने लिख दिता, असी उन्हां दोनों ने भी छड़ दिता, क्योंकि गुरबाणी एक नवेकली निरोल विचारधारा है। यह किसी का उधारा बासा ज्ञान नहीं है, यह किसी होर ग्रंथ विचों लिया होया ज्ञान उधारा नहीं है। गुरबाणी का ज्ञान निरोल नवा है, नवेकला है, विलखण है, इसका किसी दे नाल मेल नहीं है। इस करके 6 शास्त्र छड्डणे पैणगे, 7वां मुल्ला छड्डना पएगा, 8वां पंडित की विचारधारा छड्डनी पएगी। पंडित मुल्ला जो लिख दिया, छाड़ चले हम कुछ ना लिया। जिस दिन 8 चीज़ां छड्ड देवांगे, 9वीं गल फिर गुरु की शुरू होएगी, फिर गुरबाणी की गल शुरू होएगी। फिर गुरबाणी नूं पुछ के देखो वैकुंठ की है, कि इंद्र देवते का स्वर्ग राज? कह लगे नहीं, आ तेनू दसा वैकुंठ की है। शब्द हिंदुस्तान वाला वरतिया, पर व्याख्या अपनी दे दी। कहो कबीर ए कही है काहे, साध संगत वैकुंठ है। साडा वैकुंठ साध संगत है। मुकत भुगत जुगत तेरी सेवा, जिस तू आप कराहे तहां वैकुंठ, जह कीर्तन तेरा तू आपे शरदाला है। वैकुंठ की व्याख्या हो गई। साडा वैकुंठ जिथे गुरबाणी का कीर्तन है, जिथे साध संगत है। ब्राह्मण कौन है जी? जे व्याख्या करांगे फिर व्याख्या करनी पएगी शास्त्रां दी। जिन्हें तिलक लगाया, धोती लगाई, बोधी रखी हुई, गुरु नूं पुछ के देखो ब्राह्मण कौन है? सतगुरु कहन लगे, कह कबीर जो ब्रह्म विचारै सो ब्राह्मण कहिए तो है हमारे। साडे चों नूं ब्राह्मण कहंदे ने जिहड़ा ब्रह्म दी विचार करदा है। हुण सुच्चे दी व्याख्या देखो, सुच्चा कौन है? शास्त्र आखदे ने जिहड़ा तीर्थ ते इशनान करदा है, वो सुच्चा हो जांदा है। गुरबाणी आखदी नहीं, साडे च उहनूं सुच्चा नहीं कहंदे। सूचे एह ना आखीए बहन जे पिंडा धोए, सूचे सही नानका जिन मन वसिया सोए। साडे च वो सुच्चा है। साडे विच जाग दे अर्थ वखरे ने, सौण दे अर्थ वखरे ने, नरक सुरग दे अर्थ वखरे ने, वैकुंठ दे अर्थ वखरे ने, धर्मराज के अर्थ वखरे ने, चित्रगुप्त के अर्थ वखरे ने, जन्म मरण के अर्थ वखरे ने, अज मुक्ति शब्द आया ये अर्थ वखरे ने।
अपने अर्थ ने गुरबाणी दे, इन्हें बाहरों उधारे नहीं ले हुए। लोग आखते ने मर के मुक्ति मिलती है, सतगुरु कह लगे मुए हुए जो मुक्त दिओगे मुक्त न जाने कोई ला। सानू मरण तो बाद मुक्ति नहीं चाहिए। प्यास अज लगी है, अज पानी पीना, जे हफ्ते बाद प्यास मिटे तो काहदा पानी हो। भुख मैनू अज लगी है, अज भोजन करा, महीने बाद भुख मिटे, काहदी मैनू उस भोजन की लोड़। अज मैं प्यास हुण तड़प के दम तोड़ जाना, मरण तो बाद समुद्र भी मिले तो मैं की करना है। अज मैं डुब के मर जाना, मरण तो बाद बेड़ा भी मिले तो मैं की करना है। एक बूंद जल कारने चातरिक दुख पावे, प्राण गए सागर मिले फुनकाम ना आवे। प्राण जो थाके थिर नहीं कैसे बिरमावो, बूढ़ मुए नौका मिले को कहे चढ़ावो। मैनू मुक्ति वो चाहिए नहीं है। कई बैकुंठ नहीं लवे लागे, मुक्त बपुड़ी भी ज्ञानी त्यागे। दर दर्शन का प्रीतम होवे, मुक्त बैकुंठ है करे क्या। राज न चाहो मुक्त न चाहो, मन प्रीत चरण कमलारे। मैनू जिउंदे जी मुक्ति चाहिए है। गुरबाणी ने जीवन मुक्त की गल की। प्रभ की आज्ञा आत्म हितावे, जीवन मुक्त सो कहावे। आखिरी वचन जीवन मुक्त सो आखिए, मर जीवे मरिया। जिहड़ा अज गुरु शब्द विच मर के गुरु दे हुक्मां मुताबक जिउंदा वो जीवन मुक्त हो गया, जिउंदे जी विकारों तो मुक्त हो गया। जन नानक सतगुर मेल हर, जग दुतर तरिया। मेरे प्रीतम जियो सच्चे गुरु नूं मिला दिओ, ताकि मैं दुतर मैंने औखा तरिया जाने वाला संसार सागर तर सकां। सतगुरु किरपा करन। आने वाले समय इहो जिहे बड़े शब्द आएंगे, सानूं गुरबाणी चों उन्हां दी व्याख्या लभणी पएगी। बेअंत भुल्लां थीमां फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा।